Hello everyone. I hope you all are good and enjoying my lecture. So in the series of RD Rural Development lecture, today I will discuss about social security. Okay, this is the sixth lecture in the rural development. Okay, so I am sharing the screen, then I will discuss in detail. Myself Vishnu Dev Kumar and Assistant Professor in Galgotia College of Engineering and Technology. Okay, I'm going to discuss sixth lecture in rural development, administration and planning. So till now we have discussed concept of rural development, basic elements of rural development, importance of rural development, strategies and program for rural development, programs in agriculture sector. Now, today we will discuss about programs in social security. Okay. So social security, what is social security first of all? मतलब कि अभी तक हमने जो प्रोग्राम्स डिफरेंट प्रोग्राम्स देखे हैं, अब क्या है कि सोशल सिक्योरिटी के रूप में एज ए सिक्योरिटी क्या क्या प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए हैं या स्टार्ट किए गए हैं. ठीक है. सो सोशल सिक्योरिटी इज बोथ अ कंसेप्ट एज वेल एज अ सिस्टम. सोशल सिक्योरिटी जो है वो एक कंसेप्ट भी है और एक अपने आप में एक सिस्टम भी है. It represents basically a system of protection of individuals who are in need of such protection by the state and an agent of the society. ठीक है. तो इसका जो बेसिकली क्या है, ये सोशल सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स. हर एक इंडिविजुअल के लिए प्रोटेक्शन का एक सिस्टम है जो सभी को जरूरत है ना, सबको जरूरत है. और ये सिस्टम जो प्रोवाइड की जाती है बाय स्टेट द्वारा या कोई एजेंट, सोसाइटी का एजेंट के द्वारा. सच प्रोटेक्शन इज रेलिवेंट इन कंटिन्यूअस सच एज रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, retrenchment, death, disablement, which are beyond the control of the individual members of the society. तो ये सब कहाँ पे लागू होते हैं, किस क्षेत्र के लिए लागू होते हैं? ये उन वहां पे लागू होते हैं जहां पे इंडिविजुअल मेंबर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि इसको रोक पाना. तो जैसे रिटायरमेंट का है, रेजिग्नेशन का है, डेथ का है, डिसेबलमेंट का है, तो ये इंडिविजुअल कोई पर्सन इसको सिक्योर नहीं कर सकता. इसीलिए गवर्नमेंट या सोसाइटी आती है बीच में और इसको इस तरह से सिक्योरिटी प्रदान करती है. Men are born differently, they think differently and act differently. State as an agent of the society has an important mandate to harmonize such difference through a protective cover to the poor, the weak, the deprived and the disadvantaged. तो क्या कह रहा है कि हर एक लोग अलग अलग सोच के अकॉर्डिंग पैदा होता है, हर एक लोगों की अलग अलग सोच होती है. तो इसीलिए क्या किया गया कि गवर्नमेंट को आना होता है कि जो गरीब लोग हैं या जो कमजोर लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए, ताकि जो दबंग लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनसे हेल्प करने के लिए स्टेट को बीच में आना होता है. ठीक है. तो यदि पहला प्रोग्राम की बात करें तो यह है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. पहला ये है. तो इसमें क्या होता है कि द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज ए गवर्नमेंट बैक्ड accident insurance scheme that covers accidental death, permanent disability and partial disability. Individuals between 18 years and 70 years are eligible to apply for the scheme. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana is Indian government's accidental insurance cover which was announced in the 2015 budget. This scheme was launched to provide personal accident insurance to the high-risk categories such as mechanics, laborer, truck driver, which involves a lot of traveling. It is also one of the cheapest insurance cover. The scheme also cover both partial and permanent disability cover.
तो ये 2015 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना स्टार्ट की गई थी। इसमें क्या है कि 18 साल से 70 ईयर, 18 ईयर टू 70 ईयर के बीच में जिनका एज है वो एलिजिबल है इस सुरक्षा बीमा योजना के लिए। ठीक है, ये एक्सीडेंटल डेथ के लिए है एक्चुअली। एक्सीडेंटल या तो डेथ होता है या पार्शियली या परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, तो उन तीनों केस में ये सुरक्षा बीमा योजना काम करती है। ठीक है, so the risk cover under the scheme is Rs 2 lakh for accidental death and Rs 1 lakh for full disability and partial disability. The premium of Rs 12 per annum is to be deducted from the account holder's bank post office account through auto debit facility in one installment. तो ये क्या है, इसमें या तो परमानेंट डेथ होती है तो एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 2 लाख रुपये, और यदि परमानेंटली या पार्शियली फुल डिसेबिलिटी या पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख रुपया इनको मिलता है एज ए इंश्योरेंस, एज ए बीमा। इसके लिए क्या होता है कि 12 रुपये पर एनम के हिसाब से आपको प्रीमियम देना होगा। या तो आप किसी बैंक अकाउंट से दे सकते हैं या किसी पोस्ट ऑफिस में ये बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं, जहां पे ऑटो डेबिट का फैसिलिटी है, अपने आप आपके अकाउंट से 12 रुपीज पर ईयर कटता रहेगा। So the scheme is being offered by public sector general insurance companies or any other general insurance company who are offering the product on similar terms with necessary approval and tie up with banks and post office for this. तो इसमें कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी पार्टिसिपेट कर सकती है जो इसको फॉलो करे कि 12 रुपीज पर एनम के प्रीमियम पे 2 लाख का एक्सीडेंटल डेथ के लिए और 1 लाख फॉर फुल डिसेबिलिटी एंड पार्शियल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ये था हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें क्या होता है कि द स्कीम इज अवेलेबल टू पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 50 years having a bank post office account who give their consent to join enable auto debit. Risk coverage under this scheme is for Rs 2 lakh in case of death of the insured due to any reason. The premium is Rs 330 per annum, which is to be auto debit in one installment from the subscriber bank post office account as per the option given by him on or before 31st May of each annual coverage period under the scheme. तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? सॉरी, जो होना चाहिए आपका 18 to 70 ईयर, बट इसमें क्या है 18 to 15 ईयर, सॉरी 18 to 50 ईयर्स। ओके, दूसरा क्या है कि उसमें केवल एक्सीडेंटल डेथ या एक्सीडेंट के केस में फुल्ली डिसेबल या पार्शियल डिसेबल के केस में ही आपको इंश्योरेंस कवर था। बट यहाँ पे एनी हाउ किसी भी केस में, है ना, किसी भी तरह से यदि डेथ होती है तो आपको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। इसके लिए आपको 330 रुपए का प्रीमियम हर साल आपको पे करने होंगे, जो ऑटो डेबिट के फॉर्म में होगा, वो आपके अकाउंट से कटेगा, या तो आप किसी बैंक से करवा सकते हैं या किसी पोस्ट ऑफिस से, जो 31 मई से पहले कटता है। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर हो गया? वो 18 से 70 साल के लिए था, ये 18 से 50 साल के लिए। उसमें 12 रुपए प्रीमियम था, इसमें 330 रुपए प्रीमियम है। दोनों का इंश्योरेंस कवर जो है 2 लाख ही है, दोनों केस में 2 लाख ही मिलेगा मैक्सिमम। तो लेकिन उसमें क्या था, केवल एक्सीडेंटल के केस में हो सकता है, इसमें किसी भी केस में हो सकता है। ठीक है, तीसरा है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड with effect from 1st June 2015. The scheme aims to provide monthly pension to eligible subscribers not covered under any organized pension scheme. Atal Pension Yojana is open to all bank and post office account holder in the age group of 18 to 40 years. Okay, तो अटल पेंशन योजना जो 18 से 40 साल के एज ग्रुप के लिए है, जिसका कहीं और पेंशन स्कीम नहीं चल रहा हो, उसके लिए ये जो है 1 जून 2015 से लागू हुआ था अटल पेंशन योजना।
minimum pension of 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 is guaranteed by the government of India to the subscriber at the age of 60 years, with a minimum monthly contribution for those joining at age 18 of 42, 84, 126, 168, 210 respectively. तो इसमें क्या है कि आपको 18 से 40 साल के बीच में ज्वाइन करना है इस योजना को, इस पेंशन योजना को। तो जब आपका एज 60 साल हो जाएगा तो उसके बाद आपको पर मंथ मिलेगा जितना का आप चाहेंगे उतना, जैसे कि 1000 पर मंथ का चाहते हैं या 2000 का या 3000 का या 4000 का या 5000 का। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? यदि आपका फॉर एग्जाम्पल कि अभी एज यदि आपका 18 साल है तो 1000 यदि आपको मंथली पेंशन चाहिए तो आपको 42 रुपीज मंथली अभी जमा करना पड़ेगा। कब तक? जब तक आपका एज 60 ईयर नहीं हो जाता। जैसे 60 ईयर हो जाएगा तो वो आपको 1000 मिलने लगेगा। क्लियर? यदि आपको 3000 फॉर एग्जाम्पल 3000 यदि आपको पेंशन लेना है तो आपको देखो यहाँ क्या है 42, 84, 126, तो आपको 126 अभी से जमा करना होगा यदि आपका एज 18 ईयर है। तो इसी तरह अमाउंट बढ़ता जाता है आपके एज के अकॉर्डिंग। जैसे यदि आपका 40 ईयर 40 ईयर हो जाएगा तो आपका मैक्सिमम अमाउंट जो होगा वो आपको पे करना पड़ेगा अप टू 60 ईयर। तो 40 ईयर के एज में आप एंट्री करेंगे तो 20 साल जमा करना पड़ेगा, और 18 साल के एज में आप एंट्री करेंगे तो अराउंड 42 ईयर आपको जमा करना होगा। तो इसी रेस्पेक्टिव में आपका अमाउंट भी बढ़ जाता है। ठीक है, सो आफ्टर द डिमिस ऑफ बोथ द सब्सक्राइबर एंड द स्पाउस, the nominee of the subscriber shall be entitled to receive the pension wealth as accumulated till age 60 of the subscriber. दूसरी बात क्या है कि जो पेंशनर है उसका यदि लेडीज है तो उसके हस्बैंड, और हस्बैंड है तो उसकी वाइफ, दोनों का डेथ हो जाने के बाद जो नॉमिनी बचेगा उसको 60 साल तक आपने जो भी पैसे वहां पे कंट्रीब्यूट किए थे वो सारा इकट्ठा एक साथ जोड़ के आपको नॉमिनी को मिल जाएगा। तो ये था अटल पेंशन योजना। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसमें एंट्री का एज क्या है, 18 से 40 साल के बीच। आपको जितना मिनिमम पेंशन चाहिए होगा 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना होगा पर मंथ। यदि आपका एज 18 साल है आज के डेट में तो 1000 के लिए 42 रुपया, 2000 के लिए 84 रुपया, 3000 के लिए 126 रुपया, 4000 के लिए 168 रुपया, और 5000 यदि आपको पेंशन चाहिए 60 साल के बाद तो 210 रुपया पर मंथ आपको अभी से जमा करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी अमाउंट आपने 42 साल जमा करा होगा वो आपके नॉमिनी को आपके डेथ के बाद मिल जाता है। ठीक है, नाउ वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट 1923। तो ये 1923 में एक कंपेंसेशन एक्ट बना था वर्कमेंस के लिए कि जैसे फैक्ट्रियां होती थी, वहां पे कोयला खदानें होती थी, वहां सब लोग बहुत सारे वर्कर्स काम करते थे, उसके लिए मेनली ये कंपेंसेशन प्लान बनाया गया था क्योंकि वहां पे बहुत सारे दुर्घटनाएं होती थी। तो उनको गवर्नमेंट ने एक कुछ कंपेंसेशन एक्ट बनाया जिसके तहत उसको उतना मुआवजा मिलता था। ठीक है, सो द वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट इज द ओल्डेस्ट ऑफ द सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन इंटेंडेड फॉर द वेलफेयर ऑफ वर्कर। दिस एक्ट takes care of two contingents, namely disablement due to employment injury and death due to employment injury. तो ये दो केस में या तो आप परमानेंट डिसेबल्ड हो जाते हैं जब काम करते हुए उस टाइम इंजरी हो जाती है, या फिर आपकी उस टाइम डेथ हो जाती है एम्प्लॉयमेंट इंजरी के कारण। A lump sum compensation amount is paid to the disabled worker or the dependent as the case may be during both the contingencies. तो यदि आपका डेथ हो जाता है तो आपके जो नॉमिनी होंगे उसके या आपके जो डिपेंडेंट होंगे आप पे उनको मिलेगा, या फिर यदि आपका डिसेबल्ड हो जाता है, यदि किसी का डिसेबल्ड हो जाता है तो उनको मिलेगा। ये कुछ लमसम अमाउंट होते थे। So the maximum amount of compensation for disablement is Rs 5.48 lakh and death is Rs 4.56 lakhs. तो डिसेबलमेंट के केस में 5.48
5.48 लाख कंपनसेशन मिलता था और डेथ के केस में 4.56 लाख का कंपनसेशन मिलता था। ठीक है। इन केस ऑफ टेम्पोररी disablement, monthly payment are made up to 50% of wages up to 5 years. तो यदि परमानेंटली नहीं है, वो टेम्पररी डिसेबलमेंट है कि कुछ दिनों में 2, 4, 5 साल में यदि वो सही हो जाने वाला है तो 50% तक आपका अगले 5 साल तक मिलता रहेगा। ठीक है। So the Workmen Compensation Act is not applicable to those workers who are covered by the ESI Act. ESI क्या होता है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। इसके अंतर्गत यदि आपकी सैलरी अब के टाइम में 15,000 या उससे कम है तो आप ईएसआई के तहत आ सकते हैं। तो उसमें आपका पूरा मेडिकल फ्री मिलता है पूरे फैमिली का। तो यदि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट लेने के लिए आपको ईएसआई नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो है सबसे पुराना सोशल सिक्योरिटी एक्ट है। ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। सो this act is applicable to every establishment being a factory, plantation or mine and to every shop or establishment in which so maternity benefit act 1961. This act is applicable to every establishment being a factory, plantation or mine and to every shop or establishment in which 10 or more persons are employed. The state government may, with the approval of the central government, declare that all or any of the provisions of the act shall apply also to any other establishment or class of establishment, industrial, commercial, agriculture or otherwise. तो ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है वो 1961 में लाया गया था। ये वहां पे जहां माइन, प्लांटेशन या फैक्ट्री में जहां पे 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते थे उसके लिए ये बनाया गया था। अंडर दिस एक्ट फीमेल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर पेड हॉलीडेज नॉट एक्सीडिंग 12 वीक इन द केस ऑफ मैटरनिटी एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड दे आर एलिजिबल टू रिसीव फुल वेजेज। तो इस केस में मैक्सिमम 12 वीक तक जो लेडीज है, यदि लेडीज वर्कर को मैटरनिटी मिलता था 12 हफ्ते तक। ठीक है। 12 हफ्ते तक लीव मिलता था विथ फुल पेमेंट, मतलब उसकी जो भी मंथली वेजेस थी, मंथली सैलरी थी, वो पूरा ही मिलते थे 12 वीक तक। देयर इज ऑल्सो प्रोविजन फॉर प्री नेटल confinement and postnatal care free of charge, failing which employer is liable to pay medical bonus of Rs 250। तो जो मेडिकल बोनस जो नहीं पे कर सकता था उसको, उस केस में क्या होता था कि 250 रुपीज बच्चा होने से पहले और बच्चा होने के बाद ये प्रोवाइड कराता था। सो इन द केस ऑफ मिसकैरेज मैटरनिटी हैव लीव इज अवेलेबल फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। तो यदि मिसकैरेज यदि हो जाता था, बच्चा खराब हो जाता था, तो ये 12 वीक नहीं तब 6 वीक का ही लीव मिलता था विथ फुल सैलरी। देयर इज ऑल्सो प्रोविजन फॉर सिक लीव फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ इन केस ऑफ सिकनेस अराइजिंग आउट ऑफ मैटरनिटी। यदि मैटरनिटी के कारण बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए 1 महीने का और छुट्टी का प्रावधान था। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। नाउ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 applies a non-seasonal power using factories employing 10 or more persons and non-power using factories and certain other specified establishment employing 20 or more persons for wages. Workers in factories establishment covered under the scheme and drawing wages up to Rs 6,500 per month are covered under the scheme. इस स्कीम के तहत जहां पे 10 या 20 लोग काम करते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज में, जहां पे या तो फैक्ट्रीज बन रहे हैं या फैक्ट्रीज काम कर रही है, वहां पे इस स्कीम के तहत
कुछ आपका कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो यदि कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपका जॉब के बाद आप 6,500 रुपया आप पर मंथ ले सकते हैं। इसके लिए क्या है कि द स्कीम इज फाइनेंस फ्रॉम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का एक कंट्रीब्यूशन होता है, जिसको हम आज के डेट में ईपीएफ भी बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। ठीक है, सो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट एट 1.75% ऑफ देयर वेजेज। तो जो एम्प्लॉयज होगा वो अपने अपने वेजेज का, अपने सैलरी का 1.75% कंट्रीब्यूट करेगा, और एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करेगा 4.75%। ठीक है, तो दोनों मिला के अराउंड 6.5% जो है वो ले सकता है आफ्टर इन दिस स्कीम। ओके, लो पेड एम्प्लॉय ड्रॉइंग वेजेज अप टू Rs 40 पर डे आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट। जिसकी पर डे की वेजेज दिहाड़ी 40 या उससे कम है, तो उसको खुद जो 1.75% कंट्रीब्यूट करना होता था वो नहीं करेगा, पूरा का पूरा एम्प्लॉयर ही कंट्रीब्यूट करेगा। So the scheme provides the following benefits: sickness benefit including medical care, disablement benefit, maternity benefit, and dependent benefit in case of death due to employment injury। तो इसके ये सब कुछ बेनिफिट्स हैं जो ड्यूरिंग द जॉब, जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक ये सब बेनिफिट मिलता था, और बाद में आप 6,500 रुपया पर मंथ आप यहाँ से निकाल भी सकते। ठीक है, तो आई होप आपको ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम समझ में आया होगा, स्कीम भी समझ में आया होगा। और आज जितना भी मैंने स्कीम्स और इंश्योरेंस स्कीम और प्रोग्राम्स डिस्कस किए हैं, एक्सप्लेन किया, आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट डे जो हम डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम इन एरिया ऑफ सोशल सेक्टर। ओके, सो थैंक यू फॉर watching my lecture, and subscribe my channel for new lecture and for next lecture. Also you can get many different lectures and short videos also from my channel, so please subscribe and enjoy different types of lectures. Thank you for watching and keep watching.